Hello everyone, how are you all? Now, today we are going to revision of our chapter number 11, class 8. Now, this is our chapter, chemical effects of electric current. Now, you elders might have cautioned you against touching an electrical appliances with wet hand. But do you know why it is dangerous to touch an electrical appliances with wet hands? Why we should not touch electrical appliances with wet hand? क्यों हमें electrical appliances wet hand से touch नहीं करने चाहिए? What is the reason? We have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity. कि मतलब कि earlier that electric current to pass through them are good conductor of electricity. कि जो electric current अपने में से पास कर सकते हैं, they are known as the good conductor of electricity. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. So there are two types of conductor. First is good conductor of electricity and the second is poor conductor of electricity. Now, the first is good conductor of electricity. It means which can जो कर सकते हैं विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम कि जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर सकते हैं दीज आर नोन एज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकेंड इज कि विच कैन नॉट पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम कि जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करते दे आर नोन एज द poor conductor of electricity. Okay, so there are two types of conductor. We made a tester to test whether a particular material allow the electric current to pass through it or not. Do you recall how the tester helped us in declining that? So we found that materials such as copper and aluminium conduct electricity. Metals कि जिसमें कि अगर हमारा किसका है कॉपर है और एल्यूमिनियम है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कि जो मेटल्स है कॉपर है लाइक एल्यूमिनियम है वो तो क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे बट सम मेटेरियल्स एज रबर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करेगा तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट copper and aluminium these are a good conductor of electricity. Okay, these are good conductor of electricity, but when we talk about the rubber this is a bad conductor of electricity. Now here this is a tester. Okay, now in this tester we use, so first this is a tester. Okay, now there are two diagrams. Okay, first is good conductor. First diagram is show which is a good conductor of electricity and the second diagram is show that which is a bad conductor of electricity. Now here the tester, this is a plastic body. Okay, now we talk about the tester. So this is a plastic body. Okay, and this is a metallic body. Okay, ये क्या है एक metallic body है. After that now here we prepare a circuit. Okay, हमने यहाँ पे क्या प्रिपेयर किया एक सर्किट प्रिपेयर. नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टच दिस साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर नाउ फ्रॉम द टॉप ऑफ द metallic body. Now second we connect it with the cell. After that the end of the cell we connect with the bulb and now last one the bulb is connected with the final end of the metallic body. Now we observe that the bulb is glow. Here the bulb is glow. So why this bulb is glow? Because the metallic body of this tester is a good conductor. ओके तो दिस इज अ मेटेलिक बॉडी. ये क्या है मेटेलिक बॉडी है कंडक्टर इसकी टेस्टर की. तो दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स व्हाई द बल्ब इज ग्लो. कि बल्ब क्या कर रहा है ग्लो कर रहा है. आफ्टर दैट कि इन द सेकेंड डायग्राम
same we prepare a circuit, but now here we touch this wire from the plastic body of the tester. Now here this is attached with the starting of the cell, after that end of the cell, and then bulb, और लास्ट में जो बल्ब से जो वायर है उसको हमने वापस किससे अटैच कर दिया है, प्लास्टिक बॉडी ऑफ द टेस्टर की. नाउ हियर द बल्ब इज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. तो व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन कि दैट बल्ब इज नॉट ग्लो. तो बिकॉज दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ plastic. So when we talk about the tester, so in the tester, the handle which is made up of the plastic body, that's why it is a bad conductor of electricity, poor conductor of electricity. And here this is the metallic body, that's why it is a good conductor of electricity. Okay, now rubber, plastic and wood do not conduct electricity. These are the examples. Okay, so which is a good conductor of electricity? So these are the examples ki copper and aluminium, this is the example, good conductor of electricity. And the plastic, wood, rubber, these are the example of bad conductor. या फिर हम कह सकते हैं कि they do not conduct electricity, they do not allow the pass of electricity through them. Okay, now however so far we have used a tester to test materials which were in solid state, but what about liquid? Okay, now कि here हमने क्या करा, tester of test material which are in solid, कि we can by this tester activity we can show that कि this is a solid. Okay, तो it means solid can pass the electricity. Okay, तो जो solid है वो तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सक रहे हैं. बट what about liquids, क्या liquids भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं या नहीं? तो do liquid also conduct electricity? Let us find out कि क्या liquid भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं या नहीं. तो इसको भी हम फाइंड आउट करते हैं. तो डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ टू टेस्ट whether a liquid allow electric current to pass through it or not, we can use the same tester. अब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड ये तो हमारे किसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, सॉलिड में. अब हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, कि लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं या नहीं. तो इसके लिए हम एक्टिविटी शो कर रहे हैं. हमने सेम लिया है. तो रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर. वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. किसके अंदर हमने सेम टेस्टर यूज में लिया है और उसके बाद हमने इसके अंदर सब की बैटरी ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक आउट वेदर वर्किंग और नॉट. हमें सब ये प्रिकॉशंस है कि हमें ये देख लेना है कि वो पास आउट हो रही, मतलब सब करेक्ट है या नहीं. ओके, नाउ हियर अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ ये हमारी एक्टिविटी है. जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट. हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया. दिस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड बल्ब शुड ग्लो. ओके, ये हमारे जो हमने अभी जो एक्टिविटी शो करी थी टेस्टर वाली, वही एक्टिविटी है. However the bulb does not glow, it means that the tester is not working. Can you think of this possible reason? It is possible that the connection are loose. कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन लूज हो तब भी वो बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता. और द बल्ब इज फ्यूज्ड, दोनों रीजन है. फ्यूज भी हो सकता है या भी ग्लो भी कर सकता है. और योर सेल आर ऑल्सो used up. Check that all the connection are tight. If they are, then replace the bulb with another bulb. Now test if the tester is working or not. If it is still not working, then replace the cells with the fresh cells.
दीज आर द प्रिकॉशंस, कि ये हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम कुछ भी चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो एक्टिविटी शो कर रहे हैं तो ये हमें चेकआउट कर लेना चाहिए। ओके नाउ अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, लिक्विड वाला। ओके दिस इज द, ये हमने एक सर्किट प्रिपेयर किया है कि यहां पर हमने क्या किया है, जहां पे ये हमने पूरा एक सर्किट प्रिपेयर किया है तो यहां पे जो हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हमने यूज में लिया है, यहां पे एक हमने लिक्विड ले लिया। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ लिक्विड, ओके हमने क्या करा, एक लिक्विड लिया है। आफ्टर दैट वी मेक अ सर्किट, अब हम क्या बना रहे हैं, एक सर्किट बना रहे हैं। नाउ वी पुट दीज इलेक्ट्रोड्स इनटू द लिक्विड, अब हमने क्या करा, ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनको किस में डाल दिया, लिक्विड्स में डाल दिया। नाउ वी ऑब्जर्व इट, कि अब हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे कि दिस बल्ब इज ग्लो और नॉट, कि क्या ये बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, डज लेमन जूस एंड विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लेमन जूस जो हमने यहाँ पे यूज में लिया है, लेमन जूस एंड हमने सेकंड हम विनेगर भी यूज में ले सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से हम एक सॉलिड के अंदर, तो हमने जैसे वो टेस्टर वाला इलेक्ट्रिसिटी सर्किट प्रिपेयर किया था, लिक्विड के अंदर हम इस तरीके से एक सर्किट प्रिपेयर करेंगे कि जिसके अंदर दिस इज आवर बैटरी, ये किसको शो करेगी, हमारी बैटरी को शो करेगी। दिस इज आवर बल्ब, ये किसको शो कर रहा है, हमारे बल्ब को शो कर रहा है। दीज आर वायर्स, ये किसको शो कर रहे हैं, वायर्स को शो कर रहे हैं। और दीज टू इलेक्ट्रोड्स, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। ओके और आफ्टर दैट दिस इज अ लिक्विड। ओके नाउ what happened when the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, the circuit of tester become complete, the current flows in the circuit and the bulb glow. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. It means कि when we put these electrodes into the lemon juice, so we observe that कि when this electricity is अगर ये this lemon juice is a good conductor of electricity, अगर ये lemon juice good conductor of electricity होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी अपने में से क्या करेगा, पास आउट होने देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास आउट हो जाएगी, इट मीन्स हमारा सर्किट क्या है, कंप्लीट हो जाएगा एंड द बल्ब विल ग्लो, बल्ब क्या करेगा, जल जाएगा। ओके बट व्हेन दिस लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये लिक्विड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि we will here when we use lemon juice to replace it we use distilled water, ठीक है। first of all we use distilled water. okay now यहां पे हमने क्या यूज में ले लिया है, distilled water. here we use distilled water. after that when we put electrodes into the distilled water we observe that कि bulb will not glow, bulb glow नहीं करेगा। What is the reason कि bulb will not glow? Because this distilled water is bad conductor of electricity. ये distilled water क्या होगा? This is a bad conductor of electricity. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने when we put these two electrodes, जैसे ही हमने यहाँ पे ये जो टू इलेक्ट्रोड्स इस डिस्टिल वाटर के अंदर पुट करें, यहाँ पे हमने लेमन जूस नहीं लिया है, ठीक है। अब हम लेमन जूस नहीं ले रहे, हमने यहाँ पे ले लिया है डिस्टिल वाटर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, डिस्टिल वाटर। तो नाउ व्हेन वी पुट दीज टू इलेक्ट्रोड्स इनटू द डिस्टिल वाटर वी ऑब्जर्व दैट दिस बल्ब इज नॉट ग्लो, ठीक है, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो व्हाट इज द रीजन, रीजन इज दैट कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट इज नॉट कंप्लीट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। क्यों क्यों क्योंकि ये जो डिस्टिल वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास आउट
नहीं होने दे रहा है। तो जब इस इलेक्ट्रोड से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड इलेक्ट्रोड तक आ ही नहीं रही है, तो फिर ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ही ग्लो नहीं करेगा। इट मीन्स कि दिस डिस्टिल वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये डिस्टिल वाटर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? अब इस डिस्टिल वाटर में हमने क्या करा? एड सम सॉल्ट। अब हम इस डिस्टिल वाटर में क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्ट। डिस्टिल वाटर हमने क्या ले लिया? डिस्टिल वाटर हमने इसमें क्या डाल दिया? अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आफ्टर दैट वी ऑब्जर्व दैट कि अब जब हम बल्ब को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो नाउ इन दिस टाइम बल्ब विल ग्लो। बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। तो इट मीन्स कि व्हेन वी ऐड अ सॉल्ट इनटू द डिस्टिल्ड वाटर, नाउ दिस डिस्टिल्ड वाटर बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है और ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है और बल्ब क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। ओके, तो हियर सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर एंड सम लिक्विड्स आर bad conductor. They are not a good conductor. In some situation, even through the liquid is conducting, the bulb may not glow. It may have happened in the activity. Okay. Do you remember why the bulb glow when the electric current pass through it? Due to the heating effect of current, the filament of the bulb gets heated to a high temperature. अब यहां पर ये तो हमें पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। अब आफ्टर दैट नाउ वी ऑब्जर्व दैट कि हाउ बल्ब इज ग्लो। अब बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है? तो इसका द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। बल्ब ग्लो कब करता है? कि जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास हुआ। तो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट, जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास हो रहा है तो जो हीटिंग इफेक्ट है, ओके, तो दिस हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। कि जैसे ही हमने इसमें हीटिंग इलेक्ट्रिक पास हुई, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो उसमें क्या इफेक्ट हुआ? हीटिंग इफेक्ट हुआ। हीटिंग इफेक्ट से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से जो फिलामेंट ऑफ बल्ब है गेट हीटेड। हीटिंग इफेक्ट से जो बल्ब का फिलामेंट है वो क्या हुआ? हीट हुआ, उसके अंदर वो हीट हुआ टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्टेड ग्लोइंग। हाई टेम्परेचर से वो हीट होना स्टार्ट हुआ और फिर क्या होता है? वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस बाय दिस, ये जो रीजन है कि क्या हो रहा है कि बल्ब ग्लो कैसे करता है? जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, पास होते ही कि इसके अंदर जो फिलामेंट है, जो थिन फिलामेंट है, वो हीट होना स्टार्ट कर देता है हाई टेम्परेचर पे और बल्ब क्या होता है? ग्लो कर जाता है। हाउ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड। कई बार होता है कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम, नॉट ओनली लिक्विड, की जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इतना वीक होता है कि हीटिंग इफेक्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता बल्ब को, तो वो बल्ब ग्लो नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम कई बार जो बल्ब ग्लो नहीं कर पाते तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं एलईडी लाइट्स। ठीक है, तो ये जो एलईडीज है ये इजी है, ये हमें कम उसके अंदर भी ग्लो कर जाती है कि अगर बल्ब या हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं तो उसके अंदर कई बार कुछ क्वांटिटी में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो एलईडी ग्लो कर जाती है, उसको इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं हो। Sufficient and does not glow. And why is the current in the circuit weak? Okay, well, through a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. कि दो रीजन है कि कई बार बल्ब इसके अंदर सर्किट या तो कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर वो बल्ब जो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है वो बहुत वीक है। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट द वीक कंडक्टर करंट, कि जो वीक करंट है उनको डिटेक्ट करने के लिए भी हम
सर्किट बना सकते हैं और उसके लिए हम यूज में लेंगे एलईडी लाइट्स. We can use another effect of electric current to make another kind of tester. Do you recall that electric current produce a magnetic effect? What happened to compass needle cap nearby when current flow in a wire? Even if the current is small, the deflection of the magnetic needle can be seen. Can we make a tester using the magnetic effect of current? Let us find out the activity. देखो यहाँ पे हम टू ऑप्शन है हमारे पास कि एक तो हम ये जो एलईडी लाइट्स है, ठीक है, ये एलईडी लाइट्स भी हम इसमें यूज में ले सकते हैं कि जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किट प्रिपेयर कर सकते हैं. क्योंकि इनको भी ये भी होती है कि थिन होती है, तो इनको बहुत ज्यादा हाई हीटिंग इफेक्ट की टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती. एंड सेकेंड ऑप्शन इज दैट कि वी कैन यूज मैग्नेटिक नीडल. ओके, तो हम कोई भी वीक करंट को जनरेट करने के लिए, कि वीक करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम एक और कि हम ये मैग्नेटिक नीडल भी हम यूज में ले सकते हैं. तो इसके लिए हम एक मैग्नेटिक इफेक्ट, यूजिंग अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि यहां पे हम मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी या वीक जो हम यूज पता कर सकते हैं कि ये वीक करंट है या हाई करंट है. ओके, तो इसके अंदर जैसे कि हम कैसे बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहां पे हमने, दिस इज आवर सेल. ओके, सेल है, बट हियर वी यूज मैग्नेटिक नीडल इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द बल्ब. यहां पे हमने बल्ब के रिप्लेसमेंट में हमने यहां पे क्या यूज में ले लिया, मैग्नेटिक नीडल. ओके, तो जो बल्ब का रिप्लेसमेंट है, बल्ब को क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हीटिंग इफेक्ट क्या चाहिए, हाई, तब जाके वो फिलामेंट हाई होगा, हीट होगा और बल्ब ग्लो करेगा. बट अब हम क्या कर रहे हैं कि कई बार जो वीक करंट पास होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल ले ली. अब वी मेक अ सर्किट. ओके, आफ्टर दैट वी पुट दीज इलेक्ट्रोड्स. ये इलेक्ट्रोड्स लिए, यहाँ पे हम कुछ भी लिक्विड यूज में ले सकते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई एक लिक्विड फिल किया है. ठीक है, ओके. नाउ आफ्टर दैट व्हेन वी पुट दीज इलेक्ट्रोड्स इनटू द लिक्विड, हमने यहाँ पे इस लिक्विड के अंदर ये इलेक्ट्रोड्स पुट किए हैं. तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये अगर वीक करंट फ्लो कर रहा है लिक्विड, तो यहाँ पे हल्के से करंट से भी नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा. तो जैसे ही ये नीडल है, ठीक है, नीडल हमने, ये पूरा वायर है, ये पूरे वायर्स हैं, वायर्स के थ्रू हमने इसको पूरे एक सर्किट के साथ अटैच कर दिया. ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट हल्का सा भी पास आउट हुआ, तो ये नीडल में हमें क्या शो हो जाएगा, डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा. तो जो भी नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट. हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो by this deflection, by this needle deflection, we can say that this liquid can pass electricity. This is a weak current. Okay, तो इस तरीके से हम नीडल, क्या मैग्नेटिक नीडल के थ्रू भी डिफ्लेक्शन शो कर सकते हैं कि वो कितना वीक करंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, क्योंकि बल्ब के लिए तो हाई टेम्परेचर चाहिए, और उसके रिमेनिंग हमने यहाँ पे क्या यूज में ले लिया, मैग्नेटिक, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वीक करंट को भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ we find that some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductors. कुछ लिक्विड गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ लिक्विड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Actually, under certain condition, most material can conduct. That is why it is
preferable to classify materials as good conductor and poor conductors instead of classify as conductor and insulator. कि मतलब कि under certain condition most material can conduct, कि कई सारे material conduct कर सकते हैं. That is why it is preferable to classify material as good conductor and poor conductor. कि कुछ जो हमारे पास बहुत सारे अननोन मटेरियल्स पड़े हैं, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज अ गुड एंड दिस इज द बैड. तो इसके थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच इज अ गुड कंडक्टर और विच इज अ बैड कंडक्टर, और हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि विच इज अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कौन सा इसमें से कंडक्टर है और कौन सा इसमें से इंसुलेटर है. ओके, नाउ we have tested the conduction of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through distilled water. जैसे मैंने अभी आपको बताया tap water और distilled water. tap water तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेगा, बट डिस्टिल वाटर इट विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करेगा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी. टैप वाटर से तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाएगी. When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. This is the conductor of electricity. जैसे अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि when we use distilled water, pure distilled water, तो pure distilled water this is the bad conductor of electricity. Now अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, salt. Okay, when we add salt, okay, तो now it will become a salt solution. Okay, केवल हमने यहाँ पे क्या लिया, distilled water plus salt. अब ये क्या बन गया, salt solution. अब ये क्या बन गया, salt solution. Now this salt solution, this is a good conductor of electricity. ये salt solution क्या होगा, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. सिंपल डिस्टिल वाटर नहीं है, ठीक है, हमने इसमें क्या ऐड किया है, सॉल्ट. तो नाउ इट विल बिकम सॉल्ट सॉल्यूशन. अब ये क्या बन गया हमारा, सॉल्ट सॉल्यूशन. तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा. नाउ द टैप वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप, हैंड पंप्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर. ओके, ये प्योर नहीं होते हैं. तो ये क्या करेंगे, इट में कंटेन several salt dissolved in it, a small amount of mineral salts and naturally present in it. This water was a good conductor of electricity. कि अगर हम सिंपल वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के अंदर कई सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. प्योर वाटर इट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर, उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते. Why distilled water is not a good conductor of electricity? Why distilled water is bad conductor of electricity? Okay, तो what is the reason कि distilled water bad conductor of electricity है? तो this is the reason because no minerals present in the water. कि in the distilled water, कोई डिस्टिल वाटर में कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है. दैट इज द रीजन कि उसमें कोई भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती. अब हमने जैसे व्हेन वी ऐड सॉल्ट, हमने सॉल्ट ऐड किया है, मिनरल ऐड किया है, सोडियम क्लोराइड ऐड किया है, तो इट मीन्स अब उसमें क्या ऐड हो गया है, मिनरल्स ऐड हो गए. तो नाउ इट विल बिकम अ गुड कंडक्टर. अब वो क्या हो गया है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया है. तो इसी तरीके से कि जो ये हमारे हैं some sources such as taps, hand pumps, wells and pond is not pure. ये सब प्योर नहीं होते हैं. और इन सब में क्या प्रेजेंट है, several salt dissolved in it, minerals dissolve होते हैं. तो that is why these are a good conductor of electricity. वो सब क्या होते हैं, good conductor of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के good conductor होते हैं. On the other hand, distilled water is free of salts and is a poor conductor. तो distilled water क्या है, free of salt. Okay, तो that is the reason ये क्या है, poor conductor of
electricity. Okay. Now we have found that common salt when dissolved in distilled water makes a good conductor. What are the other substances which when dissolved in distilled water make it conducting? Let us find out. Most liquids that conduct electricity are solution of acid, base and salts. Okay, कि जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर रहे हैं तो बेसिकली वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं या फिर salts होते हैं. When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? जैसे ही इसके अंदर कुछ इफेक्ट होता है, कुछ पास आउट करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन इफेक्ट होते हैं. तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी लिक्विड अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है तो उसमें क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर रहा है. ओके, थैंक यू. रिमेनिंग हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ओके.